fact, the Prime Minister also tweeted, and I quote from his tweet, he went on to say that during the period of Congress and the India Alliance, the city of spirituality and faith was always neglected. But we are working day and night with the resolution of building a divine and grand Kashi. On that note, let me also cut across to my colleague Devika, who's in Varanasi at this point in time. Devika, we saw the splendor of what Yatra did yesterday for the crowd. They were full of excitement. They were exuberant. They were, in fact, ecstatic about the Prime Minister once again contesting from Varanasi. What is today likely to look like? The Prime Minister is going to be filing his nomination. And of course, we would want to understand what's in store for the people as well as viewers of the sights we are about to witness in Varanasi today. I believe that the Prime Minister is, of course, going to start his day with a puja. Absolutely, Vineet. So it's going to be not as much of a jam-packed day as it was yesterday. The roadshow is now over. So Prime Minister Modi's schedule for the day is like this. He will begin his day with a dip in the holy Ganga waters, after which he's expected to visit the Kal Bhairav temple in Varanasi. After that, we've been told that Prime Minister Modi will be heading to Taj, Varanasi, where he will be received by 12 chief ministers of BJP states. And from there, the entire cavalcade will make their way to the district magistrate office where we're standing right now in Varanasi. And this is where the Prime Minister will be filing his nomination papers at about 11:40 a.m., which is supposed to be an auspicious time as per the reports that we have now come across. So Prime Minister Modi today, after submitting his papers, will officially become a part of the race as far as the 2024 Lok Sabha contest is concerned. And of course, this will be his third time contesting from Varanasi. The BJP has set a very, very ambitious target for the Prime Minister himself. They say that this time the Prime Minister's voter margin and winning margin will be much greater than last time around. Remember, last time in 2019, he won with a 63% margin. So literally, it's very rare that this happens, but literally more than half of the people who voted, the literal majority in Varanasi that voted for Prime Minister Modi. So the BJP is saying that this time his vote share should go up by 7 lakh votes. To 7 lakh votes, pardon me, because last time around he was just 30,000 short of 7 lakh votes. So that's the ambitious target that people here have set for the Prime Minister. But we have some people, of course, Varanasi is a city that's known to be up and about 24/7. There are some people who are here near the district magistrate's office, and soon it will turn into a fortress as the Prime Minister makes his way. But let's speak to some of the people. भाई साहब, प्रधानमंत्री जी आएंगे आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने. कल रोड शो भी था उनका वाराणसी में. तो आप क्या बता सकते हैं, काशी में आपने क्या डेवलपमेंट या विकास देखा है पिछले 10 साल में? नहीं, विकास तो थोड़ा बहुत हुआ है 10 साल में. और जितने जैसे प्रधानमंत्री जब आते हैं और जितने सजाते हैं, अगर वो हकीकत में कर देते, सजावट नहीं हकीकत में कर देते हैं, तो विकास और अच्छा हो जाता. पर जब आते हैं तो पूरा सजा देते हैं, पर जाते हैं तो सब खत्म हो जाता है. और प्रधानमंत्री आज 10 साल रहे हैं, बनारस तो बनी गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनका जो तानाशाही है यही दिक्कत है. अच्छा, so this is the first time that we're hearing some criticism from the Prime Minister from Kashi as well. भाई साहब, आप क्या बताएंगे कि काशी में विकास हुआ है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं, विकास है सब. ये सब पहले था. प्रधानमंत्री के आने से पहले सड़कें ऐसी थी, साफ सफाई ऐसी थी. सब कुछ सही है, चल रहा है. कौन चीज बेकार है? सब चीज बढ़िया है, बनी रहा है सब. भाई साहब, आप बताइए, क्या आपको देखकर लगता है कि वाराणसी में कुछ बदला है, कुछ पॉजिटिव बदलाव आया है? निश्चित रूप से काशी खुद बहुत प्राचीन नगरी है. विकास के जिन संस्मरणों को दोहराया जाता है या बताया जाता है, वो यहाँ पहले से मौजूद है. आप जहाँ खड़ी हैं, ये सारा बहुत पुराना इलाका है. सड़कें ये तो राष्ट्र निर्माण का एक हिस्सा है. 5 बजे के बाद अगर आप देखेंगे तो विकास का पैमाना बदल जाएगा. चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके सम्मान में हम लोग जो है हर रूप में तैयार हैं. काशी मेहमान की मेजबानी करने को तैयार है. बस 5 बजे तक का विकास है. 5 बजे के बाद विकास का स्वरूप अलग होगा.
क्या दिक्कत है वाराणसी में? आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, पर आप बताइए कि आपका सजेशन क्या रहेगा गवर्नमेंट को कि जब जो भी अगला आए वाराणसी से फिर तो वो क्या करे आप लोगों के लिए? बनारस में ऑलरेडी सारे, पुरानी नगरी है ना, यहाँ पहले से सारे संसाधन मौजूद हैं। एम्स पहले से डिमांड बनी रहा है, कमलापति त्रिपाठी जिले से ये All right. Devika, you seem to be breaking up. Let me come back to you momentarily. In fact, Arvind Chaturvedi, channel head, India News, Uttar Pradesh and Uttarakhand is also joining us on the broadcast. Arvind, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? Arvind? यस विनीत, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, प्लीज़। अरविंद, कल का माहौल देख के और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी अपनी एक तरह से जो ऊर्जा और श्रद्धा दिखाई है वाराणसी के तरफ, एक बहुत आम सा ये गैस है कि इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से जीतेंगे, पर अटकलें ये लगाई जा रही है कि कितनी मात्रा से जीतेंगे वो भी एक बड़ा विषय हो सकता है। विनीत, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने बनारस से इस बार तीसरी बार नामांकन करना है उनको, और उसका तकरीबन 11:40 का समय तय किया गया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे अमित शाह हो, चाहे सुनील बंसल हो, चाहे उनकी पूरी टीम हो, पिछले कई दिनों से बनारस में डेरा डाले हुए है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 10 लाख वोटों का टारगेट उन्होंने रखा है कि 10 लाख वोटों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं। लेकिन मुझे जो उम्मीद लगती है कि 6 से 7 लाख के वोटों से जीतने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से अजय राय का नॉमिनेशन यहाँ पे हुआ, अजय राय के नॉमिनेशन में कहा गया था कि पूरा विपक्ष का कुनबा जो है यहाँ उपस्थित रहेगा, इंडिया गठबंधन यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ पर नजर नहीं आया। उसके अलावा इंडिया गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी यहाँ पर जिनके साथ गठजोड़ है कांग्रेस का, उनके जो नेता है समाजवादी पार्टी के, वो भी अजय राय के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। उसमें हम एक नाम लेना चाहते हैं, सुरेंद्र पटेल, जो कि यहाँ के बड़े नेता हैं, पटेलों के नेता भी हैं, अजय राय के नॉमिनेशन में नहीं गए। तो इससे ये पता चलता है कि आखिर इंडिया गठबंधन में यानी समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में अंदर खाने में क्या चल रहा है, और जो हमें बताता है कि आने वाले दिनों में, मतलब जिस दिन वोटिंग है उस दिन बनारस में क्या होने जा रहा है। उसके अलावा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पे पोस्ट किया जब उनका रोड शो समाप्त हो गया, और किस तरीके से उन्होंने इमोशनली अपने आप को बनारस के साथ कनेक्ट किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अरविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमील, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। अरविंद ने अजय राय की भी बात करी, जो प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला इस बार तीसरी बार करेंगे, और इससे साफ आंकलन लगाया जा सकता है जमील कि जो इंडी गठबंधन है उन्होंने किसी तरीके की तैयारी नहीं करी, और अजय राय अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो इसके पीछे ना ही कोई रणनीति है, ना ही कोई प्लान है, क्योंकि एक तरह से जो मुकाबला है और इसका जो नतीजा है वो पहले ही तय हो चुका है। फिर भी ऐसा लगता है कि वाराणसी को लेके विपक्ष के पास अब कोई भी दाव पेच नहीं बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, और अरविंद सर ने भी कहा कि जो इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी के रूप में अजय राय को उतारा गया है, और समाजवादी पार्टी की जो सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं सुरेंद्र पटेल, वो अगली सरकार में राज्य मंत्री भी रहे, वो यहाँ पर ना नामांकन में शामिल हुए और ना ही कहीं प्रचार करते हुए भी दिखाई दे रहे। तो इस लिहाज से अगर समझ सकते हैं कि अजय राय को इसका नुकसान सहना पड़ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में ठीक ठाक नहीं चल रहा है वाराणसी में, और शायद यही वजह है कि अजय राय अकेले खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो जिलाध्यक्ष उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन और भी नेताओं की अगर बात कर ली जाए तो अजय राय के साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अजय राय चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कितना वोट पाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि 2 बार से वो चुनाव जो हारे हैं उसमें जमानत भी जब्त हुआ है। इस बार गठबंधन से हो सकता है कुछ वोट बढ़ सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वो हवा है, जो बनारस की जो मिजाज है, वो बता रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे वोटों से चुनाव फिर से जीतने जा रहे हैं। जमील, आप बने रहिए हमारे साथ। इनफैक्ट For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.